Hyderabad city. I think at the core of each one of us present here. So that probably I don't have to question. Yeah. Telangana and Hyderabad. ठीक है ना? अब Hyderabad history and too small a man to talk about it when there are poets, thinkers, professors. For me, the history of Hyderabad doesn't start with 1956 when it became the capital of Andhra Pradesh. No. It also doesn't start with 1723 when it became the capital of Asafzahis. It also doesn't start with 1512 with the beginning of Qutub Shahis. It also does not start with Behmanis who had capital at Gulbarga, later on at Bidar in 1323. देखो साहब, ये जिस जमीन हैदराबाद पे हम लोग बैठे हुए हैं, आप ये सोचो कि 1100-1200 साल पहले यहाँ पे क्या था। చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట। బిఫోర్ కాకతీయ, బిఫోర్ का मस्ट हर्ड अबाउट वेस्टर्न चालुक्यास, कल्याण चालुक्यास नाम सुने। लेट्स स्टार्ट विद कल्याण चालुक्यास। अब उससे पहले गए तो फिर राष्ट्रकूटास, वो पुराने को जाते उनको छोड़। ये कल्याण चालुक्यास स्टार्टेड देयर इन 950 AD। 950 बोले तो क्या, ये 2013, 1063 years before, this territory of Hyderabad was under the control of Western Chalukyas. Capital कहाँ थी उनकी? कल्याण। कल्याण बोले तो कहाँ? बीदर के पास। अब जरा ध्यान रखो, कल्याण चालुक्यास, बीदर, कल्याण was the capital, and they were controlling this part of the country जहाँ हम जमीन पे बैठे हुए। गोलकुंडा नहीं होता था उस टाइम, हैदराबाद नहीं होता था, काकतीय डायनेस्टी अभी पैदा नहीं हुई थी, आने वाली। लोग क्या करते थे यहाँ पे? भेड़ा पाले, गोले, गोलो, they are the original inhabitants of Hyderabad. पहाड़ों पर कौन रहते थे? पंजाब, जहाँ बंजारा जुबली हिल है आज के दिन, वहां पे बंजारा रहते थे, इसलिए बंजारा हिल नाम पड़ गया उसका। समझ गए ना? ओरिजिनल inhabitants of Hyderabad are the shepherds and Banjaras. Neither I was there, I can assure you, nor Jagan Mohan Reddy was there. Talking of history, it is important to understand who are the original inhabitants. अब कल्याण चालुक्यास were defeated by Hoysalas from the side of Bangalore. They were also defeated by these Devgiri Yadavas थे वो, Devgiri बोले तो औरंगाबाद। And there was a new force of Kakatiyas. ये आनुकोंडा, हनमकोंडा बनाया आनुकोंडा। एक करीब 1100 के आसपास कल्याण चालुक्यास faced the attack of Yadavas of Devgiri, Hoysalas from the south, that is Bangalore, and Kakatiyas from the east. चालुक्यास चले, 3 डायनेस्टीज पैदा हुए। यादवास ऑफ देवगिरी, उनकी कैपिटल देवगिरी बनी,
काकेतियाज ऑफ वारंगल, उनकी कैपिटल ओरुगुल बनी, एंड होयसलास जो बेंगलुरु के पास है। ये मोटा मोटा समझ। अब ये जरूरी है, यादवास वहां पे थे, यहाँ पे काकेतियाज थे। इकोनॉमिक सपोर्ट सिस्टम ऑफ यादवास वाज एनिमल हस्बेंड्री। As you come towards the Warangal side, you have water facility. Kakatiyas encouraged tank irrigation. In a matter of 300 years, they constructed 5,500 tanks. ये बड़ा जरूरी है। In the time of Kalyan Chalukyas, tank नहीं होते थे। Kakatiyas constructed 5,500 tanks. जो देखो टैंक है, रामप्पा टैंक है, लखनावरम टैंक है, कितने टैंक हैं हमारे? आई थिंक वारंगल के लोग जानते हो कितने टैंक हैं। They were the tanks made by the engineers of Kakatiya dynasty. There were also water bodies. ये पाटनचेरू का नाम सुने आप? पाटनचेरू is a natural depression when you come from Orugul to Bidar. आप ओरुगुल से बीदर जाओ तो जमीन तरह ऊंची होती थी, थोड़ी जगह फिर तुम्हारी ऊंची। जहीराबाद है, जमीन ऊंची हो जाए। हैदराबाद भी ऊंची है। ये पाटनचेरू एरिया में बारिश का पानी आता था और इकट्ठा हो जाता था। रुद्रमा देवी का नाम सुनो? रुद्रमा देवी, अरे क्या ये तुम्हारे यादवास अब देवगिरी परेशान कर रहे, चलो हराती है उन्हें। History records that she came with an army, camped at Patancheru. पाटनचेरू में पानी था तो घोड़ों को पानी मिला, घास मिली, खुश। उधर से जो राजा था वो तुम्हारा पहाड़ पे अटक गया। अब घोड़े को घास नहीं, घोड़े को पानी नहीं। घोड़े भाग गए, घोड़े भागे, राजा भाग गया। रुद्रम्मा in 1285 defeated the Devgiri king, went up to Bidar, demanded his subjugation, returned back, and from Patancheru she went towards Jagtial. It was called Polvasa. Defeated the king over there, threw away the fellow across Godavari to the jungles of Gondwana, that is Adilabad, returned back, went back to Orugallu, which is also near Anukonda, constructed the temple, constructed a tank. In the times of Kakatiya, if you win, two things are done. Marry the daughter of the king whom you have defeated, construct a tank in your territory, thank the god by constructing a temple. Simple. That's how so many temples are constructed in Kakatiya. What was happening to this area called Hyderabad in the times of Kakatiya? After defeating the Devgiri king, Rudrapa thought that between Kalyan, that is the capital of Yadavas, and her own Orugallu, distance is too much. And this is a strategic location that is near Patancheru, this area, lots of water. If there is a lots of water, let me construct a fort. The first mud fort around the present hillock called Golconda was constructed by Kakatiya rulers. मट्टी का किला, वहां क्यों फोर्ट बनाया? ऊंचाई पे है भाई। अगर आप ऊंचे खड़े होकर देखोगे तो पता लग जाएगा कि दुश्मन कहां से आ रहे हैं, कंट्रोल कर सकते हो। All the forts in the whole country, the whole world are constructed on the hilltop. किला बोलते हैं उसे। No किला is constructed in the valley. किला is constructed on the top. वैली में किसाना रहते, फोर्ट में जवाना रहते, मोटा मोटा समझ गया। That was happening. जय जवान कहते, यही है ना भाई। 1323 Kakatiyas lost to Malik Kafur. Behmanis came. For some time there was a problem. Rajkonda, Devarkonda, Galma king, this king, that king. Within 100 years, Behmanis became dominant. Their capital was Gulbarga. Later on they shifted to Bidar, but Golconda became important. मट्टी के किले को पत्थर से मजबूत कर दिया। किले की मजबूती इस जगह की मजबूती का एक फ्यूचर बता रही।
आफ्टर बहमनीज पीरियड। कुतुब शाही, अब आपको तो मालूम है कि बहमनी 5 हिस्सों में टूट गए। एक उधर चला गया, एक बीदर में चला गया, एक अहमदनगर चला गया, एक हमारा गुलबर्गा चला गया, एक गोलकुंडा आ गया। गोलकुंडा का हमारे क्या है कुतुब शाही भाई। See, in 1512, the Qutub Shahi chose Golconda as a capital, not as a matter of choice. It was chosen because it has become so important from a strategic angle over last 500 years. 500 साल की जिद्दोजहद के बाद हैदराबाद शहर में पाटन चेरों का पानी, उसकी वजह से काकतिया की रानी की जीत, उसके बाद किले बनाने का यहाँ पर उनका डिसीजन, उसके बाद उस किले को काकतिया से बहमनी को छीन लेना, तो भाई किला तो उसके पास जाएगा जो ताकतवर है। पावरफुल रूलर्स विल कंस्ट्रक्ट टैंक्स एंड फोर्ट्स एंड मोर पावरफुल पीपल विल कैप्चर इट। देखा था पॉलिटिक्स हो। इट वाज देयर देन। Even today when they say we don't want to leave Hyderabad, I think it is the same process. कोई फर्क नहीं है साहब, कोई फर्क नहीं है। आप मेरे साथ चलते रहो, आपको जितने भी आज के लोग हैं सब आपको हैदराबाद की तारीख में मिल जाएंगे। सब थे तुम्हारे, उनका पुनर्जन्म हुआ है, दोबारा पैदा हो गए, तुम्हारे कहीं नहीं आए। गोलकुंडा was getting congested, हीरो का व्यापार होता था। Some people believe that Golconda had diamond mines. Let me correct, my limited understanding is Golconda was a center where the diamonds were polished. It was a center of value addition, not a center of mining. Mining center was in Kolhapur, in Kurnool, in the Krishna Valley. Most welcome, sir. Come. Let's welcome our sir. The reason to shift it from Golconda to Hyderabad सबको मालूम है। मोहब्बत हो गई, शहजादे को मोहब्बत हो गई भागमती से, तो पुल बन गया है। लोग कहते हैं पुराना पुल, मैं कहता हूं इसका नाम है प्याराना पुल। प्याराना, प्यार का पुल बोलते लोग ऐसा। सलाउद्दीन भाई बताइए, उसका पुराना बताएं, प्याराना क्या नाम है तुम्हारा, आप ही बताना है बात। That was a time when Hyderabad came on its own. First, कुतुब शाही क्या, सिटी डेवलप, गुरु से बलात बन गया, शहरों के बीच दुल्हन, ये नाम था हैदराबाद का, उर्दू से बलात। जब बहुत चीज चमकने लगती है तो उसको नजर लग जाती है। औरंगजेब भी यहाँ पे थे, पहले गवर्नर थे, 1635 में आ गए थे, आपको शायद मालूम है। 15 साल गवर्नर रहे, 40-50 साल फिर बादशाह रहे। 50 साल में पता नहीं हैदराबाद से कितनी मोहब्बत हो गई उन्हें कि उन्होंने गोलकुंडा को बर्बाद किया। 1683 में हैदराबाद गोलकुंडा नाश हो गया। 36 साल तक इसका मुगल साम्राज्य का राज रहा। The point which I want to highlight is in 1687 when Aurangzeb destroyed the Golconda fort, there were 7-story buildings in Charminar. चार मीनार में 7 मंजिली इमारत औरंगजेब के बर्बाद करने वाले दिन थी, उनको उसने जला दिया। कुछ साल बाद औरंगजेब ऊपर वाले को प्यारे हो गए। इसी जमीन पर औरंगाबाद में उनकी बनी हुई है। औरंगजेब तो चले गए, हैदराबाद अभी जिंदा है। This is another very important thing about the city of Hyderabad. People might have destroyed it, people might have constructed it. कुली कुतुब शाह को याद करते कि भाई उसने हैदराबाद को बनाया, औरंगजेब को याद करते भाई उसने बर्बाद किया। दोनों की याद होती है। हैदराबाद तो जिंदा है, जब तक जिंदा रहेगा जिसने प्यार किया उसे याद रखेगा। Another thing about the Mughal times I want to tell you
In a period of 36 years, there were 11 rulers changed in Hyderabad. कभी एक गवर्नर, कभी दूसरा, under the control of Delhi. In those 36 years, the economy of Hyderabad, the security of Hyderabad, and the law and order of Hyderabad, it went to dogs. जब हैदराबाद का कंट्रोल हैदराबाद से उठा के दिल्ली ले जाया गया है, हैदराबाद बर्बाद हो गया है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। We are not dealing with new Aurangzeb. We have dealt with the old Aurangzeb. उस जमाने में कर चुके हैं भाई। 1723 we had the Asafzadis, until 1948 we had 7 Nizams, हैदराबाद तरक्की पाया, आगे चला। In 1948 when Patel's army came and captured it, उस टाइम हैदराबाद में 4 जुबान बोली जाती थी, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, उर्दू, और उर्दू यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। आपको ये बताते मुझे खुशी हो रही है कि 100 साल पहले ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन होती थी। पर्शियन लैंग्वेज हैदराबाद में देख ली, उर्दू जुबान देख ली, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी उसके जिले देख लिए। मुल्क था, मुल्क की कैपिटल हैदराबाद बन सकती है निजाम के जमाने में। चलो भाई, मुल्क को तुमने हिंदुस्तान में मिला लिया, हिंदुस्तान में भी तुम्हारी हैदराबाद स्टेट 8 साल तक रही, 1948 टू 1956। 3 जुबान थी, मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु। गुरुकुल रामकृष्ण राव यहाँ तेलुगु स्पीकिंग मुख्यमंत्री थे, उनका नंबर 2 होता था तुम्हारा दिगंबर राव बिंदु, मराठी था वो। एक दूसरे थे गोमुखी, वो कर्नाटका थे। 20 मिनिस्टर होते थे गुरुकुल रामचंद्र राव की कैबिनेट में, 5 उसमें मराठी बोलने वाले थे, 3 कन्नड़ा बोलने वाले थे, 2 उर्दू बोलने वाले। तो भाई हैदराबाद की जो मिट्टी है उसमें ये जुबान भी जज्ब हो गई हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और वो जो बोलने वाले अभी हैं वो कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। हाँ, मराठी भी हैं, कन्नड़ा भी हैं, उर्दू बोलने वाले। हैदराबाद वो पुराना शहर, पता नहीं वो अरे भाई, एक मुल्क की कैपिटल थी, उसको पुराना शहर किसने बनाया? मेरी माँ कब से पुरानी हो गई, तुमको बड़ी तकलीफ होती है कहते हुए तुम्हारा। कोई पुराना शहर नहीं है, उस पुराने शहर को ही एक नई नजर से देखना, वो रिकंस्ट्रक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पिछले 60 साल में तो बहुत से लोग आ गए हैं, पंजाबी भी आ गए, मारवाड़ी भी पहले आ चुके थे, अब बुढ़िया भी आ रहे, बंगाली। मैं तो बोल रहा हूँ साहब, हैदराबाद में आज के दिन हिंदुस्तान की हर स्टेट का एक आईना है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगाल, वो हिंदुस्तान के लिए बोल रहे हैं। हैदराबाद में सोब हैं तुम्हारे, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, पर्शियन, अरेबियन, सोब है तुम्हारे। हिंदुस्तान का आईना है हैदराबाद, ये बात। तो साहब ये छोटे से शब्दों में मैंने हिस्ट्री बता दी आपको। अब इसका जो फ्यूचर रिकंस्ट्रक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बारे में प्रोफेसर हमारे साहब बताएंगे, उसके बारे में ज़्यादा नहीं जाऊंगा मैं, बिकॉज ही इज अथॉरिटी ऑन दैट, आई कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू हिम। बट व्हाट इज माई ड्रीम ऑफ हैदराबाद द फ्यूचर? माई ड्रीम इज वेरी सिंपल सा। सबसे पहला तो ये ड्रीम है कि जो हैदराबाद में डिस्ट्रक्शन हो चुका है, पहले तो उसको समझना और उसको महफूज करना। ऐसा नहीं है कि हैदराबाद में सब चीज अच्छी हुई है, हैदराबाद में काफी कुछ डिस्ट्रक्शन हो चुका है, उस डिस्ट्रक्शन को संभालना और वो बाकी डिस्ट्रक्शन ज्यादा न हो उसको महफूज रखना। If you ask me what is the biggest destruction which has taken place in Hyderabad, I will say it's a destruction of water bodies. अरे भाई, काकतियाज had 5,500 tanks. कुतुब शाहीज भी तुम्हारे ये हुसैन सागर और ये सागर और वो सागर और दुनिया भर के सागर बनाते चल रहे, वो बचा रहे उन्हें, बचा रहे। और आज उन सागरों में हम लोगों ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तुम्हारी, ये हम सागर को नहीं बर्बाद कर रहे, अपनी फ्यूचर आने वाली नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमें अपने बच्चों के सोचना है, if we are serious about our posterity, children and grandchildren, we have to protect water body. अगर water bodies इस तेलंगाना हैदराबाद के अतराफ खत्म हो जाएंगी तो we will destroy the future of our children. That's what I want. सबसे पहला काम protect water bodies in and around हैदराबाद। अब 600 वाटर बॉडीज हैं, 700 हैं, रंगारेड्डी में है, कहाँ है मुझे नहीं मालूम है।
जहां जहां वाटर बॉडीज है उनको बचाना, पहली। सेकंड थिंग, एक साथ हैदराबाद की हैदराबादियत हुआ करती थी, उसको महफूज, मराठी भी थे, कन्नड़ भी थे, उर्दू भी थी, मारवाड़ी भी थी, और नई नई तुम्हारी, ये सब यहाँ पे इकट्ठी होना, इन सबको महफूज रखना, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, नर्चर एंड ग्रो देम। हैदराबाद will depend upon these different linguistic groups and their growth. सब होना। एक्चुअली मैं तो सेक्रेटेरिएट में लोगों से बोल रहा था, अरे भाई तेलंगाना के हैदराबाद में कुकटपल्ली में आपको 10 एकड़ जमीन दे देंगे, यू कंस्ट्रक्ट आंध्रा भवन, क्या दिक्कत है? कहीं को नहीं, मराठी भवन करो, कन्नड़ा भवन करो, आंध्रा भवन करो। और हमारी तो एक और सोच है कि इस तेलंगाना में गुलबर्गा में जमीन ली जाएगी, बीदर में जमीन ली जाएगी, जहां गावन का वो है, जहां पे उस पीर की वो है, और उसको गेस्ट हाउस बनाएंगे। उस गेस्ट हाउस में जो भी हमारे को हुक्म, हैदराबाद के जो भी लोग वहां जाना चाहेंगे, वहां जाके उस दरगाह पे माथा टेक सकते। गोल्डन टेम्पल में भी जमीन लेंगे, आपको शायद पता नहीं है, निजाम ने गोल्डन टेम्पल को पैसे दिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पैसे दिए, एएमयू को पैसे दिए थे। अरे भाई उन्होंने पैसे दिए थे, एटलीस्ट आई कैन कंस्ट्रक्ट ए तेलंगाना गेस्ट हाउस, हैदराबाद गेस्ट हाउस इन गोल्डन टेम्पल, इन अजमेर शरीफ, इन गुलबर्गा, इन बीदर। अरे मेरा बस चले तो मैं मक्का मदीने में भी जाके तुम्हारा हैदराबाद हाउस पैदा करूंगा। ये मेरा ड्रीम है, हैदराबाद का रिकंस्ट्रक्शन। दुनिया भर से लोग आए हैं, दुनिया भर में यहाँ की रोशनी को पहुंचाना है। मोटा मोटा मैंने आपको बताया, डिटेल्स के लिए ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। कंट्रोल ऑफ हैदराबाद विल गो टू दिस एंड दैट, आई डोंट वांट वो नहीं होने देते साहब, भाई को वो नहीं होगा। A few things which I should share with my friends, my concerns about the future. देखिए साहब, ये around 20 years ago I happened to go to Manila. There is a Asian Institute of Urban Studies. So they have done studies and they have found out that 10 cities in Asia will show up the best. Out of 10 cities, 3 are in India. And you will be happy to hear that one of them is Delhi, the top, and the second is Hyderabad, third is Bangalore. I quietly asked them, why are you angry with Calcutta and Bombay and Madras? Well, no sir, they are the city who have peaked with the rise and the decline of the British Empire. They are the cities of 19th and 20th century, and thereafter they did not grow. Anyway, one can go into the details of that, but I would like to believe that Hyderabad is going to have a very great future in another coming 10-20 years. No, 10-20 years ago you had heard something and you thought, okay, well, maybe he is trying to please us. No, not so. Just 15-20 days ago I was in Delhi and the Ministry of Electronics have decided that Hyderabad will be information technology investment region. इसके बारे में जरा बता दूं साहब आपको, because you'll be happy to hear. It may not be relevant for me and you, but let me tell you, it will be relevant for our posterity, children and grandchildren. ITIR will bring an investment of 2.5 lakh crores, 15 lakh direct jobs, 28 lakhs indirect jobs, totally 42 lakh new jobs over a period of next 20 years. What they will do is very important. It will be the hardware capital like what you have in Hong Kong. जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं उन्हें पता होगा कि अपने हिंदुस्तान में सॉफ्टवेयर इज वेरी गुड, हार्डवेयर इज नॉट दैट. So all these chips and all the different products which are manufactured for electronics, etc., that production facility will come in Hyderabad. Hardware factory समझ लो, hardware की factory, software, applications, and so many other related activities. अरे भाई 70 लाख पॉपुलेशन है, 42 लाख लोग और आ जाएंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा. भुवनगिरी तक शहर बन जाएगा, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? मिर्चा तक शहर फैल जाएगा, चिविला तक फैल जाएगा.
ये सब चेवेल्ला होंगे 50 किलोमीटर का रेडियस, ये सब हैदराबाद के रेडियस में आ जाता है। उसमें 1 करोड़ लोग रहते, 1.25 करोड़ रहते, 1.5 करोड़ रहते, आई डोंट नो अबाउट इट, बट दैट इज द काइंड ऑफ ड्रीम विच ITIR project is envisaging for the city of Hyderabad. How does it impinge upon our future? It impinges upon our future because to man those factories, to work in those factories, not only in the position of engineers and doctors and managers, but so many hundreds of skills, it will require competent manpower. And that competent manpower have to be provided by your children and my children. They will be requiring new kinds of skills, the new kinds of knowledge. It will require new kinds of university. ये पुराना कॉन्सेप्ट है वो IIT और BTech और MTech, ये पुराना हो गया भैया। हैदराबाद में जो देखो BTech है आजकल तुम्हारा, नहीं मजा नहीं आता होगा। Something different has to happen, and that different would be the future of Hyderabad. The new educational institutions, the new technological capabilities, the new skills. अपने बच्चों को पढ़नी है तो इसी हैदराबाद में उनकी यूनिवर्सिटीज होना और उसको करना। And if naturally that happens, if Hyderabad becomes from 80 lakhs to something like 135, 140 lakhs, obviously I cannot have a single Hyderabad district collector. No, it doesn't make a sense. For that, my dream is, as usual, whenever in doubt, start from history. फिर सबसे पहले कौन थे? गोलकुंडा के थे। तो एक मेरा दिल कह रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट गोलकुंडा बनना। अब कहाँ बनना तुम्हारा? वो बनाओ भाई जहाँ कुतुबशाही होते थे तुम्हारे। टेक इट टू चेवेल्ला, क्या फर्क पड़ता है जी? टेक इट टू कंदी, ले जाओ। नहीं जा सकता क्या? वो हैदराबाद के बीच में टैंक बंड के पास में होना फास्ट हो गया। बनाओ कैपिटल, कंदी को बनाओ, कैपिटल बनाओ चेवेल्ला को बनाओ तुम्हारा। ये हैदराबाद गोलकुंडा। दूसरा चार मीनार को तुम्हारा महेश्वरम तक जाके। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग, व्हाई कांट द कैपिटल ऑफ चार मीनार बी महेश्वरम और इवन डीपर? बनाओ, जाओ ले जाओ धर्म। एक और सोच रहा हूँ भाई, सिकंदर शाह नाम आया कुछ याद नहीं आया। गोलकुंडा is 600 years old, चार मीनार is 400 years old, and सिकंदराबाद, सिकंदर शाह is around 200 years old। तो सिकंदर शाह का सिकंदराबाद बनाएंगे क्या? आप कहो तो उसकी कैपिटल मेडसर में डाल देते हैं। सिकंदराबाद नहीं, दूर, और बाकी बचा कुचा बीच में हैदराबाद रह जाएगा। ये हमारा जोधपुर। And my dream is to convert the present secretariat into the district collector of Hyderabad। और क्या भाई, बढ़िया कैपिटल बनाओ कहीं भाई, बड़ी बनाओ, स्टेट क्या शान हो जिसमें। हैदराबाद ईस्ट बचा तुम्हारा, सब एरिया पोचमपल्ली। Why I am talking about these things? Because you see the whole geography, this Pochampalli, this Bhongi, this Kandi, this Maheshwaram, all this orbit will be encompassing 1 crore 20 lakh people, in which today you say that I have high-tech city and Kondapur city। ये छोटे हो जाएंगे साहब, ये इनके बड़े सिटी बनेंगे तुम्हारे ITIR के, and I will go till Bhongi, I will go till all 40-50 किलोमीटर दूर तक हो जाएगा। This is the future reconstruction of Hyderabad। Not converge, not concentrate in the same tank bund or वो बन जा रहे हो multi-story building। No, Hyderabad geography is not suitable for multi-story building। It's a Deccan land, Deccan climate। वो 10-15 मंजिली बिल्डिंग की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे तुम्हारे। I need horizontal development along the land। Now, this is another dream which we are sharing, we are trying to work towards। The possibilities are there, you can always। I think I have spoken quite at length।